Good morning, everybody. In the last lecture, we have studied about a torque on electric dipole in uniform electric field. We have studied that torque was P E sine theta. This was depending on three parameters: dipole moment of a dipole, which we have kept, the magnitude of the electric field, and the angle with which we have kept that dipole in the field. किस एंगल नाल असी रखा उस चीज़ ते भी डिपेंड करेगा. No, we were discussing about the special cases. Some note we were discussing that the field is not uniform. Just imagine. See here, minus q charge is here, plus q is here, and this is the direction of a p dipole moment. The electric field is in this direction, E. What? This is not a uniform electric field. This is increasing electric field. Here the field is more and here the field is less. This is the meaning. अगर इतने फील्ड ज़्यादा होएगी तो जो फोर्स है क्यू ई वो इस जगह ते ज़्यादा होएगी. नेचुरली इस तरफ ਨੂੰ फोर्स है आज ज़्यादा है. So the resultant force, which is the vector sum of these two forces, one this and one this is not zero now, because this field here is more. So the resultant force will come in this direction, in the direction of the electric field. The resultant force along E is not zero now. But the torque will not be there. Torque is equal to P sine 0. Again, P and E has a 0 degree. Meaning is, when we are keeping in an increasing electric field, the dipole will move in this direction because the resultant force is here. It will not get rotated. Second case, if this field is decreasing, मान लो this is the electric field again, but this is decreasing, means here is the field more, means here is the force more, and resultant force will be in this direction. But again the torque will be 0 because again the angle between P and E is 0. So again now in this case the dipole will move in this direction but not get rotated. I am taking a topic, last one of this part, potential energy of electric dipole in uniform electric field. You know that if you are keeping a one dipole in a field and it is here, you are holding it at these angles. Naturally there is a torque and a turning effect is here. This direction is it has a rotations. So to keep at this position you have to hold it. Why you have to hold it? Because it has a potential energy. बेटा जिस तरह असी एक इट जमीन ते रखी है उन्होंने पकड़न लई उन्होंने उत्थे रखण लई कोई काम नहीं करना पैंदा क्योंकि उहदे विच कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं. लेकिन अगर असी उन्होंने 2 फुट उपर रखना चाहते ने तो उहदे च पोटेंशियल एनर्जी आ गई. सानू उन्होंने उपर रखण लई उपर उस जगह ते रखने पोजीशन फिक्स करने लई आपां नूं जोर लाना पेगा. आपां 1 घंटे बाद थक जावांगे, उस इट नूं पकड़ नहीं सकते, ब्रिक नूं पकड़ नहीं सकते. क्यों? क्योंकि उस टाइम उहदे विच एनर्जी है. सेम इस दे पास इस डाइपोल दे कोल इस जगह ते एक टॉर्क है, उहदी वजह नाल इहदे कोल एक एनर्जी है. तां तुहानूं काम करना पेगा उस एनर्जी के अगेंस्ट. कितनी एनर्जी है यही असी कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी. जब इट उपर चक्की तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होंगी है. और ये पोटेंशियल एनर्जी किस वजह के नाल है? टॉर्क की वजह के नाल. यू नो अगर ये थीटा एंगल के नाल रखा है तो ये ऊपर टॉर्क लग्या हुआ पी ई साइन थीटा. क्लीयर? इक्वेशन नंबर 1. हुण मान लो तुसी इसी नूं इस जगह तो थोड़ा जिहा इसके अगेंस्ट जो टर्निंग इफेक्ट लग्या है उसके अगेंस्ट डी थीटा एंगल होर रोटेट कर देना है. डी थीटा एंगल्स तो वर्क जो है वो किमें आ जाएगा? थोड़ा जिहा वर्क आएगा टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट.
ਤੁਸੀਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ अगर तुम ले रहे हो तो इस तरह फोर्स और डिसप्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, मतलब ये होया कि तुसी फोर्स लाई लीनियर मोशन दे विच और एंगुलर दे विच फोर्स की जगह लेंदा टॉर्क। लीनियर डिसप्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एंगुलर डिसप्लेसमेंट। तो इस तरह यही फार्मूला असी यूज़ किया है इतने फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट टॉर्क इंटू एंगुलर डिसप्लेसमेंट। ये वर्क आ गया इस अगेंस्ट द रोटेशन काम करने लई। मान लो हुण ये टॉर्क की वैल्यू चलो पी ई साइन दे तुसीं पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 2 तुहाडे कोल आ गई। मान लो तुसीं हुण पूरा वर्क करना है, पोटेंशियल एनर्जी पूरी कढ़ने लई असीं जनरलाइज करांगे। मान लो ये ऑलरेडी जो सीगा डाईपोल ये θ1 एंगल नाल इस तरह पिया सी इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल। देख रहे तुसीं ये एंगल है P और E दे विच θ1। तुसीं इस नूं घुमा के अगेंस्ट द रोटेशन θ2 कर देना है। θ2 तो कितना काम करना पेगा θ1 टू θ2 तुसीं इंटीग्रेट कर लोगे इस इक्वेशन में। PE कॉन्स्टेंट टर्म्स ने बाहर आ गई साइन θ नूं तुसीं इंटीग्रेट करना है। देखो हुण इंटीग्रेशन की है W इज इक्वल टू PE कॉस द माइनस साइन द माइनस कॉस θ आउंदा है, माइनस नूं बाहर निकल लिया, अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। इस तरह तुहाडी जो पोटेंशियल जो वर्क है इनफैक्ट वो जितना तुसी काम करते हो किसी चीज़ से वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है ना। +1 कितना आप डिटेल किया कि एक वृक एक इट नूं चक के आप फस्ट फ्लोर पर रखा 2 जूल काम किया 2 जूल। कोई पूछे भी पोटेंशियल एनर्जी कढ़ो तो तुहानूं ये चीज़ की लोड़ नहीं भी कितनी हाइट पर है वह कितना मास है, तुहानूं सीधा दस्या होया भी 2 जूल काम किया है तो सीधी वो 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है क्योंकि जितना काम करते हैं वो एनर्जी के रूप स्टोर हो जाता है। हुण जो काम तुसीं कीता है डाईपोल नूं रोटेट करने यही वो पोटेंशियल एनर्जी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप स्टोर हो गया है। राइट, सो दिस इज द फार्मूला U इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। But is θ1, θ2, you know θ1 is initial angle, θ2 is the final angle बेटा E electric field। कुछ केस 2 असी डिस्कस कर रहे हैं। If θ1 is 0, what is the meaning? This is the electric field and तुसी इस तरह ते डाईपोल नूं रखे और θ2 अगर इसनूं रोटेट करना है आपने इस तरह एंगल θ2 नूं लेके जाना है, मतलब θ2 इज इक्वल टू θ नूं लेके जाना है। तो फार्मूले दे विच लिखो cos θ2 θ एंड cos θ1 इज 0। तो ये फार्मूला बन गया। दूसरा केस, दिस इज नॉट अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सैकेंड वन। मान लो तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच इसनूं इस तरह नॉर्मल रखा है, माइनस क्यों इधर प्लस क्यों डाईपोल मोमेंट दी डायरेक्शन है, इलैक्ट्रिक फील्ड दी 90 डिग्री का एंगल और तुसी इसनूं रोटेट करना है θ एंगल कोई भी θ, मतलब मान लो तुसी इसनूं घुमा के ये एंगल है θ यहाँ पे इत्थों ते, ठीक है, तुसी इसनूं θ एंगल देना है तो θ1 90 θ2 θ लिखा, cos 90 0 हो गया और cos θ बन गया। हुण देखो θ एंगल P और E दे विच है, कॉज लग्या होया, इहदा मतलब इसनूं असीं डॉट प्रोडक्ट नाल देख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट इंपोर्टेंट चीज़ ये है कि टॉर्क जो हुंदा है और P और E दा वैक्टर प्रोडक्ट है और पोटेंशियल एनर्जी जो है और P और E दी डॉट प्रोडक्ट है। दिख रहे तुसीं? एक बार फिर से देखते हैं दैट U इज इक्वल टू माइनस PE cos θ,
U is माइनस पी डॉट ई। टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट है और पोटेंशियल एनर्जी जो है और डॉट प्रोडक्ट हो गई। एक नोट बहुत इंपोर्टेंट नोट है बटे, थीटा जीरो हो गया, मान लो इतने थीटा जीरो है तो यू कितना आ गया नेगेटिव। अगर थीटा जीरो समझ रहे हो ना, उसी डायरेक्शन च रखा जिस तरफ इलैक्ट्रिक फील्ड है। थीटा 180 डिग्री उल्टा रखा तो की हो जाएगा कॉस 180 माइनस वन आएगा, माइनस टू माइनस पॉजिटिव बन गया। थीटा 90 कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इत्थे देख के तुसीं बड़े ध्यान नाल देखो ये की कह रहा है, ये कह रहा भी सबसे घट पोटेंशियल एनर्जी तद होंदी है एक इलैक्ट्रिक डाईपोल दे विच जद कि वो उसी डायरेक्शन च रखा होंदा है जिस डायरेक्शन च डाईपोल मूवमेंट होंदा है, राइट। सबसे घट मिनिमम एनर्जी है। थैंक यू वेरी मच।